Hi guys of class 7. So how are you all? Guess everybody is superb there. So guys, class 7th, this is the lesson of Ratna Sagar publication Living English Unit 5. How they packed. How they packed means here. Means somebody is packing something. And have you done ever packing? यहाँ पे कोई पैकिंग कर रहा है और आपने कभी अपनी लाइफ में पैकिंग किया है? सो दिस लेसन इज ऑफ जेरोम के जेरोम, राइट? सो यहाँ पे जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको देखना कि पैकिंग कैसे करते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी पैकिंग की है, कभी आप आउटिंग पे गए हैं, तो आप पैकिंग कैसे करते हैं? लाइट वेटेड थिंग्स को कहाँ रखते हैं, ऊपर या नीचे? Let's see how they are doing the packing in this chapter. So guys, thank you so much for lots of love to me and to my channel here. And please subscribe the channel if you think this is beneficial for you and for the solution, for word to word explanation, and for the coming videos also. And if you would like to watch already uploaded videos, then please check the playlist. Up to 4 videos, up to 4 units, this is already uploaded there. Not only your Ratna Sagar publication, even grammar as well as your writing section also. So guys, first of all, let's come to the character chart. If you don't know how many characters are there, how will you come to know how the chapter is there? So the very first character chart, how many characters are there? Total 4 characters are there. The very first is Jerome. सबसे पहले कौन है यहाँ पे? Jerome. Jerome is here. नरेटर. ओके, नरेटर हु इज नरेटिंग द स्टोरी. यहाँ पे जो आपको स्टोरी सुना रहा है वो कौन है? जेरोम है. हैरिस उसका फ्रेंड है और जॉर्ज भी उसका फ्रेंड है. मीन्स ये जो स्टोरी है आपकी, वो 3 मैन इन बोट जो आपका नोवेल था, पहले 10th क्लास में लगता था ये नोवेल, तो उसमें से एक पार्ट लेकर के पैकिंग से रिलेटेड एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे आपको दिखा रहे. एंड द नेक्स्ट इज हियर डॉग. डॉग, मॉन्टमॉन्सी डॉग हियर. This is the name of that dog. So only 4 characters are here. Let's enjoy the story now. The very first, some keywords are given here like hampers. Hampers, large basket. Hampers पता क्या होता है कि जैसे फूड की पैकिंग करने के लिए कुछ जो बास्केट्स होते हैं उनको हैम्पर्स बोलते हैं. अनकैनी मीन्स क्या होता है? वेरी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस जो थिंग्स होते हैं उनको बोलते हैं अनकैनी. नेक्स्ट, cooked his legs on the table. कोक्ड हीज लेग्स, अपनी लेग्स को जैसे कहते हैं ना, टेबल पे लेग्स को रख के बैठना, कि चेयर पे बैठे हैं उसके बाद टेबल पे लेग्स को रख के बैठे, दैट इज नोन एज cocked his legs on the table. Next is lol. Lol means here lie on, lie in a relaxed manner, मतलब बड़े बड़े आराम से बैठना legs को टेबल पे रख के. Next is slaving. Slaving means here working very hard. Next is here indigently. Indigently means here कि in a shocked and angry manner, बहुत ही angry से और बड़े ही shocked manner में होना यहाँ पे. His conceit becomes क्वाइट अनबियरेबल, मतलब अनबियरेबल होना कि मीन्स किसी चीज को बियर ही नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज योर अनबियरेबल थिंग्स. एंड लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ. लेबर करना मीन्स वॉज श्योर दैट, किसी चीज का श्योर होना यहाँ पर. नेक्स्ट इज देयर सुपरिटेंडेंट. नेक्स्ट इज देयर सुपरिटेंडेंट. सुपरिटेंडेंट मीन्स किसी चीज को सुपरवाइज करना. सुपरिटेंडेंट मीन्स किसी चीज को सुपरवाइज करना. सो वाइल्ड मीन्स हियर वेरी एंग्री. सो वाइल्ड मीन्स हियर वेरी एंग्री. एंड rumaged means here, rumaged here the things up means to say searched untidily and upset everything. Searched untidily कि चीजों को सर्च करना एंड अपसेट एवरीथिंग, मतलब हर चीज को अपसेट करना. और यहाँ पे जो ना सर्च करना अनटाइडली और अपसेट एवरीथिंग, मतलब हर चीज के बारे में वो अपसेट हो जाना है यहाँ पे. सो देर इज रुमेज्ड द थिंग्स अप. नेक्स्ट इज chosing means here there was utter disorder or confusion. यहाँ पर utter मतलब confusion होना, किसी चीज का disorder में होना means sequence में किसी चीज का ना होना, confusion होना. Had to go means here try to pack. Had a go means here try to packing. And when George Wild what is here, Jaws is the worst packer. यहाँ पर जो जॉर्ज और हैरिस दोनों ही वैसे तो worst packer हैं, they don't know how to do the packing actually. And trod on means stabbed on. Trod on means stabbed on मतलब उसके ऊपर से पैर रख के चले जाना, कुचल देना किसी चीज को, पैर रख के चले जाना. डू मोर विद, किसी चीज के साथ ज्यादा करना, मीन्स मेक अ वर्स मैस ऑफ, बहुत ज्यादा गंदगी फैला देना. पैंस मीन्स अ वेरी स्मॉल ब्रिटिश यूनिट ऑफ मनी. पैंस यहाँ पर जो है वो किसको बोला गया? एक वेरी स्मॉल ब्रिटिश यूनिट ऑफ मनी है यहाँ पे, उसको बोलते हैं. टेक माई ओथ. टेक माई ओथ मीन्स से विद सर्टेनली, मीन्स श्योरली किसी चीज का कहना, किसी चीज को श्योरली बोलना.
नाउ देर इज अ चैप्टर हाउ दे पैक्ड, मीन्स कैसे उन्होंने पैकिंग की, कैसे पैकिंग की, कैसे पैकिंग करते हैं. दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम थ्री मैन इन बोट, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट दिस extract is from three man in boat. It was the novel earlier in the class 10, and this is written by Jerome K. Jerome. And three friends decide to go on a holiday. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे थ्री फ्रेंड्स होते हैं, जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज. ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हॉलीडे के लिए वो कहाँ पे जाएंगे, कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे, अपना हॉलीडे को बाहर से स्पेंड करने जाएंगे डाउन द रिवर. कहीं कहीं ना किसी रिवर पे जाना था, इन अ बोट, एक बोट में, अकम्पनीड बाय देयर डॉग. उन्होंने अपने डॉग को भी साथ में लेना था. अब इसको रीड करते कि एक्चुअली उन्होंने प्रेपरेशन कैसे की वहां पर जाने के लिए, हाउ दे डिड द प्रेपरेशन हियर. सो लेट्स कम टू द चैप्टर नाउ. We made a list of things to be taken and a pretty lengthy one it was before we parted that evening. वे उस रात क्या हुआ, मिस दिस वॉज द थर्सडे, थर्सडे को क्या हुआ, उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट बना ली कि कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर लेके जाने. तो यहाँ पर बड़ी लंबी सी लिस्ट यहाँ पर उनके सामने रेडी हो जाती है कि पैकिंग उनको किन किन चीजों की करनी है. नेक्स्ट डे कौन सा था, फ्राइडे. मिस ये पैकिंग कब की, थर्सडे को की उन्होंने. ओके, so what is there, next day which was Friday, we got them all together and met in the evening to pack. मीन्स पैकिंग करने के लिए सबके सब इकट्ठे बैठ जाते हैं फ्राइडे को, सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं. वी गोट अ बिग बैग, एक बड़ा सा बैग लेते हैं फॉर द क्लोथ्स की पैकिंग करने के लिए, एंड अ कपल ऑफ हैम्पर. और यहाँ पर जो कपल मीन्स दो, यहाँ पर टू क्या लेते हैं, यहाँ पर फूड की पैकिंग करने के लिए यहाँ पर बास्केट्स ले लेते हैं फॉर द फूड स्टफ. एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स, और बर्तन मीन्स ऐसे यूटेंसिल्स जिनमें वो कुकिंग कर सके, वो भी वो अपने साथ पैक करने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं. वी मूव द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो. अब वो एक विंडो की तरफ जाते हैं, दे मूव टू द टेबल. अब वो टेबल के पास जाते हैं अगेंस्ट द विंडो, जो कि विंडो के बिल्कुल अगेंस्ट में होता है. पील्ड एवरीथिंग इन अ हीप इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. जो फ्लोर का मिडल था उसमें वहां पर बिल्कुल बहुत सारी चीजें वहां पर बिखरी हुई थी जो उनको पैकिंग करनी थी. एंड सेट अराउंड एंड लुक्ड एट इट. और वो वहां पर बैठ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि देखो कितने ही सारे मटेरियल जो उन्होंने पैक करना है. आई सेड आई हैड पैक. वो कहते हैं, आई कौन है यहाँ पे, नरेटर जेरोम. जेरोम कहता है कि मैंने तो पैक कर लिया. आई रादर प्राइड माई सेल्फ. यहाँ पर जो नरेटर है वो अपने आप को अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है कि वो उसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, वो सबसे पहले पैकिंग करता है, उसको बड़ा प्राउड है, वो शो ऑफ करता है यहाँ पे. सो आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. वहाँ यहाँ अपनी पैकिंग पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. मतलब कहते हैं कि मुझे अपनी पैकिंग की जो स्किल थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था कि मैं पैकिंग बहुत अच्छी करता था, बहुत अच्छा करता हूँ, जो कि कोई और नहीं कर सकता. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस. अब यही इंप्रेशन वो जमाने की कोशिश करता है किस पे, जॉर्ज और हैरिस के ऊपर. एंड टोल्ड देम, उनको कहता है दैट, उनको क्या कहता है, दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. वो कहते हैं कि भी सारा का सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा. दे फेल इनटू द सजेशन with a readiness that had something uncanny about it. मीन्स यहाँ पे उन्होंने कहा कि told them that they had better leave, कि अच्छा होगा वो वहां से चले जाएं. the whole matter entirely to me, और सारा मैटर उसके ऊपर छोड़ दे, वो यहाँ पर अपने आप मैनेज कर लेगा. they fell, अब उन्होंने क्या सोचा कि they fell into the suggestions, अब उनको उस सजेशन मिल जाता है. with a readiness, अब वो रेडी हो जाते हैं. that had something uncanny. uncanny मीन्स हियर यहाँ पे क्या था कि स्ट्रेंज और मिस्ट्रीज चीजों को लेकर वो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, वो रेडी होने की ट्राई करते कि कैसे इन स्ट्रेंज थिंग्स को उन्होंने पैक करना है. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईज चेयर. अब जब उसने कहा कि भाई चलो मेरे ऊपर छोड़ दो, तो उसने क्या सोचा कि चलो भी तू आराम से जाकर चेयर पे बैठ जा. तो जॉर्ज वहां पर जाकर आराम से चेयर पे बैठ जाता है. एंड हैरीज कोक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. और दूसरा फ्रेंड था हैरी, हैरी भी अपनी लेग्स को टेबल पे रख के बैठ जाता है. ही वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड. अब ये तो उसने सोचा ही नहीं था. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था. वट आई हैड मींट, उसके कहने का ये मतलब थोड़ी ना था कि वो दोनों दोनों रिलैक्स करने लग जाए. ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड सुपरवाइज, वो तो यहाँ पे सुपरवाइज करना चाहता था. एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, वो तो ये चाहता था कि यहाँ पर क्या करे, जॉर्ज और हैरिस यहाँ पर काम करे, पैकिंग करे, किसकी डायरेक्शंस में,
जेरोम की डायरेक्शन में, कि जेरोम यहाँ पे डायरेक्शंस देगा और हैरिस और जो जॉर्ज है यहाँ पर काम करेगा उसके सुपरविजन में, और ये जो जेरोम है यहाँ पर वो सबको सुपरवाइज करेगा। आई पुशिंग देम असाइड, वो बार बार उनको अंदर की तरफ पुश करता है। एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट, अरे कोई बात नहीं मुझे करने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बहुत ईजी है, सिंपल थिंग है, ओके आई विल डू दैट। सो इस तरह से वो मतलब अपने मन में सोच रहा है कि वो इन चीजों को बोलेगा। मीन्स वो इन चीजों को क्यों सोच रहा है, वो चाहता है कि हैरिस और जॉर्ज पे वो अपना ऑर्डर चलाए, वो सिर्फ वो उनको काम करते हुए देखे और वो उनको सुपरवाइज करे। मीन्स जेरोम उनको सुपरवाइज करे और हैरिस और जॉर्ज जो है यहाँ पर क्या करे, पैकिंग का काम करे, और फिर वो उनको मतलब सुपरवाइज करते हुए ये बातें बोले जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से, मीन्स वो ये कहना चाहता है कि हाँ ऐसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे पैकिंग करते हैं। दे आर टेकिंग इन इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड, मतलब वो ऐसा करना चाहता था बट दे आर टेकिंग इट इन, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। वो उससे भी ज्यादा शार्प माइंडेड निकलते हैं, जैसे वो सोचता है कि तू उनको सुपरवाइज करना, लेकिन वो दोनों जाकर के चेयर पे बैठ जाते हैं। देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी, मतलब सबसे ज्यादा इरिटेट होने वाली बात कौन सी थी, सीम अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, कि जब वो देखता था लोगों को बैठे हुए बिना कोई काम करते हुए, व्हेन आई एम वर्किंग, और वो काम करता रहता, मीन्स नरेटर तो यहाँ पे काम करता रहे और दूसरे बैठ के उसको देखते रहे, तो उसको सबसे ज्यादा इरिटेशन इसी बात से होती थी। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, मतलब वो ऐसे लोगों के साथ रहता था जो उसे किसी भी टाइम बेवकूफ बना सकते थे। अब उन्होंने उसको बेवकूफी तो बनाया, उसने सोचा वो उसको सुपरवाइज करेगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं अभी वही पैकिंग कर लेगा। ओके, तो दोनों के दोनों फ्रेंड्स उसको बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पे। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, अब वो सोफे के ऊपर आराम से रिलैक्स होकर के वो बैठ जाता है। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स, और जो ये दोनों फ्रेंड्स हैं यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों के दोनों उसको चीज करते देखते रहते हैं, फॉर आवर्स, कई घंटों तक उसको देखते रहते हैं। फॉलोइंग मी राउंड इन द रूम विद हिज आईज, मतलब वेर एवर आई वेंट, जहां पे भी वो जाता पैकिंग के लिए सामान लेके आता, पैकिंग करने लगता, तो दोनों के दोनों सिर्फ उसकी तरफ ही देख रहे थे जहां भी वो जा रहा था। हिज आईज मीन्स उनकी आंखें सिर्फ उसके जो जेरोम के ऊपर ही टिकी हुई थी, कि जेरोम जैसे भी जाता था, नरेटर जो जेरोम है वो इधर उधर घूम घूम के पैकिंग कर रहा था, तो वो उनकी नजरें इसी के ऊपर टिकी हुई थी, और दोनों के दोनों हैरिस और जॉर्ज दोनों क्या कर रहे थे, यहाँ पर बैठ के उसको देख रहे थे। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट, ही सैड उसने कहा, इट डिड हिम रियल गुड, कहते बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गंदगी फैल रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। कौन बोलते उसके दोनों फ्रेंड्स बोल रहे हैं यहाँ पे। He said it made him feel that life was not an idle dream to be gabbed and yawed, means tired होना, yawed means यहाँ पे क्या होता है, tired होना, okay, through means यहाँ पे इसने क्या कहा है कि he said it made him, कि वो कहता है कि इस चीज से क्या होगा, feel that life was not an idle dream, कि जो लाइफ है वो कि कोई मतलब कोई सुनहरा सपना नहीं है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पर एक टायर्ड मतलब थका देने वाला, या फिर जम्भाई लेने वाला, या गैप्ड, मतलब गैप्ड या जम्भाई लेने वाली भी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। कहने का मीन्स जो लाइफ है वो इतनी इजी भी नहीं है, बट अ नोबल टास्क, लेकिन जो अच्छा अच्छा काम होता है, फुल ऑफ ड्यूटी, जो हम पूरी ड्यूटी के साथ करते हैं, एंड स्टर्न वर्क, और पूरे स्ट्रिक्टली उस काम को करते हैं। ही सैड ही ओफन वंडर्ड नाउ, वो कहते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही सरप्राइज रहा है, हाउ ही कुड हैव गॉन ऑन बिफोर, वो पहले कैसे जा सकता था। ही मैट मी, वो उससे मिला था। नेवर हैविंग एनीबडी टू लुक एट वाइल ही वर्कड, उसने कभी भी नहीं देखा था कि कोई भी उसको ऐसे काम करते हुए उसको लगा देगा और वो दोनों आराम से बैठे रहेंगे। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं उसके अब मैं ऐसा नहीं रहा। आई कांट सिट स्टिल, अब मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। एंड सी अदर्स मैन स्लेविंग, और दूसरे लोगों को भी ऐसे रिलैक्स करते हुए नहीं देख सकता। और मैं मतलब जो हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी काम करूँ, वो भी काम करे, और मैं उनको सुपरवाइज करूँ। नेक्स्ट इज आई वांट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड, भाई मैं चाहता हूं कि मैं भी खड़ा हूं उनके सामने, लेकिन मैं उनको सुपरवाइज करूं, मैं उनको सुपरवाइज करूं। एंड वॉक अराउंड, और वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और अपने हाथों को अपने पॉकेट में डाल के, कहते हैं कि बाऊजी बन के बिल्कुल, तो अपने हैंड्स को अपने पॉकेट में डाल करके वहां पर राउंड लेता रहूं मैं, और मैं उनको क्या करूं, सुप्रिटेंड करूं, मैं उनको सुपरवाइज करूं। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, यही तो मेरा एनर्जेटिक नेचर है। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता भाई, ये तो मेरा नेचर है। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट स्टार्ट बट स्टे
स्टार्टेड द पैकिंग, लेकिन उसने क्या किया यहाँ पर पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब, ये उसमें कभी टाइम लगा, देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी, जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा उसमें टाइम लगा। अब देखो ये दोनों इनके फ्रेंड है, जॉर्ज और हैरिस, दोनों के दोनों इसके फ्रेंड्स हैं, जिसे आराम से रिलैक्स वो यहाँ पे कर रहे हैं। बट आई गोट द बैग फिनिश एट लास्ट, लेकिन बहुत जल्दी उसने फिनिश कर ली अपनी पैकिंग। आई सेट ऑन इट, और पैकिंग को फिनिश करके उसी के ऊपर बैठ गया। एंड स्टैब्ड इट, उसको पूरी तरह से मतलब बंद कर दिया, चैन वगैरह स्ट्रिप वगैरह सब कुछ बंद कर दी उसकी। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या तुम बूट पैक नहीं करोगे, हैरिस ने कहा। भाई तुमने बूट पैक नहीं किया, अपने बूट नहीं पैक कर रहे हो तुम यहाँ पे। एंड आई लुक्ड अराउंड, और यहाँ पर जो जेरोम होता है वो चारों तरफ देखता है। एंड फाउंड, और उसको मिलता है कि या आई हैड फॉरगॉटन देम, कि हाँ मैं उनको भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, वो भी बिल्कुल हैरिस की तरह ही था कि जैसे वो उसको भूल गया था काम करना। ही कुडंट हैव सैड अ वर्ड, वो कुछ एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अंटिल आई वुड गॉट द बैग शट एंड स्टैब, जब तक उसने बैग को दोबारा से शूज पैक करके दोबारा से उसको बंद कर ले, दोबारा से उसके स्ट्रिप्स वगैरह बंद कर ली, स्टैब नहीं कर लिया, तब तक उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। ऑफ कोर्स। एंड जॉर्ज लव्ड, और जॉर्ज यहाँ पर हंसने लगता है। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, और इस चीज से उसको फिर से क्या होती है, इरिटेशन होने लग जाती है जॉर्ज के ऊपर। सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, क्योंकि वो जो हंसता है वो सेंसलेस हंसता है, मीन्स वो उसका मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, वो दोनों के दोनों सोचते थे कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। ठीक है, वो उसको बिल्कुल बेवकूफ मान के चल रहे थे कि ये तो बिल्कुल क्या है, बहुत बेवकूफ है। लेकिन यहाँ पर इनकी इन्हीं हरकतों से वो क्या हो जाता है, सो वाइल्ड मीन्स बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है। सो वाइल्ड मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है उनके इस इरिटेशन वाले नेचर की वजह से। आई ओपन द बैग, उसने बैग को ओपन किया। एंड पैक द बूट, बूट को पैक किया अंदर। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज, जैसे वो उसको बंद करने लगा बैग को, अ हॉरिबल आइडिया, एक बिल्कुल डरावना सा आइडिया उसके माइंड में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्योंकि वो टूथब्रश को लेके वरीड था यहाँ पे, वो बूट्स को लेके वरीड नहीं था कि बूट्स को पैक करना है नहीं करना, बूट्स को लेके वरीड नहीं था। लेकिन वो यहाँ पर टूथब्रश को लेकर के बहुत ज्यादा वरीड था कि उसने उसको पैक किया या नहीं किया, क्योंकि एक बार पहले उसके साथ ऐसी हैपनिंग हो चुकी थी। आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, मतलब मैं हमेशा से सबसे पहले यही चेक करता हूँ कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया या नहीं किया। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी, मेरी जो टूथब्रश है वो एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत डराती है। हॉन्ट्स मीन्स यहाँ पर फियर्स, तो यहाँ पर डराती है। व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, जब भी मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, तो मेरी जो लाइफ है बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है, माइजरी मतलब बिल्कुल पीटीफुल हो जाती है। आई ड्रीम दैट आई हैडंट पैक्ड इट, अब मेरे को एकदम से लगा कि नहीं नहीं, अरे मैंने तो उसको तो पैक ही नहीं किया, मीन्स मैंने अपने टूथब्रश को तो पैक ही नहीं किया। वर्क अप इन कॉल्ड कॉल्ड पार्सिपरेशन, तो वो क्या करता है, एकदम से ठंडे दिमाग से सोचता है भी क्या करूं, कहाँ पे पैकिंग किया नहीं किया। एंड गेट आउट ऑफ बैग, फिर वो अपने बैग गेट आउट ऑफ बेड, फिर बेड से वो उठता है। और यस, गेट आउट ऑफ द बेड, बेड से उठता है। एंड हंट फॉर इट, और उसको फिर से जो ये डर उसको सताने लगता है कि क्या एक्चुअल में उसने उसको टूथब्रश को डाला है नहीं डाला। एंड इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, वो सोच रहा है यहाँ पर कि मैंने उसको शायद पैक किया था जब मैंने उसको यूज किया था। एंड आई हैव टू अनपैक अगेन, और मैंने फिर से उसको दोबारा से खोल दिया, टू गेट इट, उसको दोबारा से निकालने के लिए। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न ऑफ द बैग, और यही वो चीज थी जब उसको हमेशा इसी चीज के लिए बैग को खोलना पड़ता था। एंड देन आई रीपैक, फिर से उसको रीपैक करना पड़ा। एंड फॉरगेट इट, वो भूल गया। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स, अब वो दोबारा से दौड़ करके भाग के अपस्टेयर्स पे जाता है। फॉर इट, एंड एट लास्ट मोमेंट, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, बिल्कुल रेलवे स्टेशन पे वो लेके आता है। तो ये हैपनिंग इसके साथ ऑलरेडी हो चुकी थी। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, क्योंकि उस टाइम पे ये जो था ऑलरेडी उसने अपने हैंडकरचीफ में पॉकेट में डाल रखा था। ठीक है। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न आउट एवरीथिंग, अब ये जो इंसिडेंट थी उसके साथ पहले हो चुकी थी कि पहले भी वो मतलब कभी पहले जब बाहर गया था आउटिंग पे तो वो अपना टूथब्रश भूल गया था, लेकिन बाद में उसको कहाँ मिला, उसको अपना टूथब्रश किस में मिला, हैंकी में वो रैप किया हुआ मिला था। ऑफ कोर्स अब भी लगा कि नहीं नहीं, अब तो मुझको देख लेना चाहिए कि मेरे टूथब्रश है या नहीं है, तो सारी चीजों को यहाँ पर बाहर निकालना शुरू कर देता है। The same state that they must have been before the world was created, तो मतलब मिस यहाँ पर वो दोबारा से सारी चीजें निकालते हैं और सेम हैपनिंग उसको यहाँ पे भी होती है। एंड व्हेन चॉज रेन,
ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। मीन्स कहते हैं कि उसको 18 टाइम्स जो वो जॉर्ज और हैरिस की जो ब्रश, वो बार बार उन्हीं की ब्रश उसको मिल रही थी, उसको अपनी ब्रश यहाँ पर नहीं मिल रही थी। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन उसको अपनी ब्रश तो मिली नहीं यहाँ पर। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन। अब उसने क्या सोचा कि चलो सारी चीजें वन बाय वन करके दोबारा से बैग में से निकाल लेते हैं। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप, फिर उसने सारी चीजों को उठाया एंड शूक इट, और वो जो वो यहाँ पर शूक हो जाता है, झुक जाता है कि क्या करने के लिए, यहाँ पे उन चीजों को बाहर निकालने के लिए फटाफट से। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और अब की बार उसकी ब्रश कहाँ थी, ऑब्वियसली बूट के अंदर। पहले जो उसकी ब्रश थी कहाँ मिली, हैंकी के अंदर, और अब कहाँ पे मिली, उसको अपने बूट के अंदर मिली। आई रीपैक्ड वंस मोर, दोबारा से उसने सारी चीजों को फिर से पैक कर दिया। When I had finished, जब उसकी फिनिश होगी पैकिंग, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। अब जॉर्ज फिर से उसके मजे ले रहा है, फिर से पूछने लग जाता है। पहले हैरिस ने पूछा, अब जॉर्ज ने पूछा कि क्या तुमने सोप रख लिया इसके अंदर। वेदर इट वाज नॉट, बेशक वो इसमें नहीं था। एंड आई स्लैम्ड द बैग एंड स्टैब्ड इट, बेशक उसने दोबारा से बैग को बंद कर दिया था। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड अ पाउच इन इट, मैंने भी एक पाउच तो पैक कर दिया था, वो भी टोबैको का, यहाँ पर टोबैको का पाउच तो उसने पैक कर दिया। एंड हैड टू रीओपन इट, उसको दोबारा से रीओपन करना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। अब 10:05 पे उसने फाइनली उस बैग को पैक कर दिया। कौन कौन सी चीजें यहाँ पर भूला, पहली बार तो सबसे पहले जो हैरिस है उसने रिमाइंड करवाया कि क्या भूल गया, वो शूज, जो उसके बूट्स होते, शूज होते, वो पैक करना भूल गया, तो वो उनको पैक करता है। सेकेंडली उसको एकदम से अपने दिमाग में आता है, माइंड में आता है कि क्या उसने टूथब्रश को पैक कर लिया, तो सेकंड थिंग उसको टूथब्रश याद आती है, और उसको एक इंसिडेंट भी याद आता है कि पहले कैसे उसने टूथब्रश को मिस किया था, लेकिन दोबारा उसको हैंकी में ही मिली, ठीक है, जहां पर वो रेलवे स्टेशन पे जा रहा था। अब फिर से उसने टूथब्रश को पैक किया। थर्ड थिंग क्या थी यहाँ पर, जो जॉर्ज, जब अब जॉर्ज की टर्न आती है, जॉर्ज उसको थोड़ा इरिटेट करते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने सोप रख लिया, तो थर्ड जो थिंग है वो सोप है यहाँ पर, जो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, उसको रीपैक करनी पड़ी थर्ड टाइम। ओके, नाउ 10:05 पे उनकी पैकिंग कंप्लीट हो जाती है। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब यहाँ पर हैम्पर्स में जो ईटेबल थिंग्स होते हैं उनकी पैकिंग जो यहाँ पर बच जाते हैं। हैरीज सैड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम। भाई हमें मतलब 12 आवर्स से कम टाइम लगेगा अगर हम इनको भी पैक कर लेते हैं तो वो क्या करने लगे थे यहाँ पर, हैरिस जो है said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better do the rest। कहते हैं कि देखो तुमने क्लोथ की पैकिंग कर ली, ठीक है, तुमने सारी चीजें रख ली, अब जो इटेबल थिंग्स है उनकी पैकिंग हम कर लेंगे। किसने कहा, हैरी ने और जॉर्ज ने, दोनों ने कहा कि हम दोनों इनकी पैकिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो वो भी एग्री हो जाता है, जेरोम एग्री हो जाता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ और तुम इनकी पैकिंग कर लो। एंड हैड अ गो, ठीक है, वो फिर क्या करते हैं, उसकी पैकिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। अब वो मतलब उसको दिखा रहे थे कि कैसे कैसे वो यहाँ पर करने वाले हैं। एंड आई ओनली वेटेड, अब वो उनको देखता रहता है। व्हेन जॉर्ज इज डेड हैरिस विल बी द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि जब जॉर्ज यहाँ पे जॉर्ज की डेथ हो जाएगी ना, उसके बाद हैरिस सबसे गंदा पैकर होगा। मीन्स टू से कहने का कि जॉर्ज और हैरिस को बिल्कुल भी पैकिंग यहाँ पे नहीं आती, सबसे ज्यादा पैकिंग जो गंदी है वो जॉर्ज की है, ठीक है, उसके बाद हैरिस की है। वैसे तो दोनों की है, लेकिन जॉर्ज की सबसे ज्यादा, कि जब जॉर्ज की डेथ हो जाएगी तो हैरिस सबसे गंदा, सबसे खराब जो है पैकिंग करने वाला इस दुनिया में होगा। तो कौन सोचता है यहाँ पर, वो कौन सोच रहा है, जेरोम सोच रहा है। एंड आई लुक्ड एट द पिल्स ऑफ प्लेट्स। अब वो पिल्स ऑफ प्लेट्स के बारे में सोचता रहता है, कप के बारे में सोचता है, केटल के बारे में, बोटल्स के बारे में, जार, और जो पाइज होती हैं, जो स्टोव्स होते हैं, जो केक होता है, टोमेटोज होते हैं, और सो ऑन, उन सारी चीजों के बारे में सोचता है कि देखता हूँ ये कैसे पैक करते हैं। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, चीजें बहुत जल्दी एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि उसको पता था कि उनको पैकिंग तो आती नहीं है। एंड इट डिड, और अब ये हो गई। कैसे हुई पैकिंग, देखते हैं कैसे की। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने जो पैकिंग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट की, एक कप को तोड़ते हुए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनके हाथ से एक कप छूट गया और वो कप टूट गया। तो उनको पता था कि कुछ ना कुछ वो मैस क्रिएट करेंगे यहाँ पर, कहीं ना कहीं कबाड़, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो गिराएंगे, बहुत गंदगी फैलाएंगे, तब जाकर के वो पैकिंग करेंगे। और पैकिंग में वो करने वाले नहीं है अच्छे से, क्योंकि उनको पैकिंग आती नहीं कि कौन सी चीजें पहले पैक करनी है और कौन सी बाद में करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने पैकिंग कब
स्टार्ट की एक कप को तोड़ते हुए. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. और ये सबसे पहली चीज थी जो उन्होंने की. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू. उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या करना चाहते थे या क्या कर सकते थे. एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. और वो आपको मतलब इंटरेस्टेड और बनाना चाहते थे. क्या इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते थे. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी. अब उसके बाद हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी को के जैम को पैक करा था. जैम ऑन द टॉप ऑफ द टोमेटो. उसने जो स्ट्रॉबेरी का जो जैम था किसके ऊपर, टोमेटोज के ऊपर पैक कर दिया. एंड स्क्वेज्ड इट. और उसने उसको गिरा दिया. एंड दे हैड टू पिक आउट देन टोमेटो विद अ टीस्पून. फिर उनको जो टोमेटो थे वो टीस्पून के साथ वहां से उठाना पड़ा. मीन्स यहाँ पर जो टोमेटो सॉस होता है वो सारा उसने यहाँ पर गिरा दिया. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. अब जॉर्ज की टर्न आती है. देखो जॉर्ज क्या हार्म करने वाला है यहाँ पर, क्या डिस्ट्रॉय करने वाला है. एंड ही ट्रॉड ऑन. अब जो जॉर्ज था उसने क्या किया, जॉर्ज मुड़ता है. ट्रॉड ऑन मीन्स वो कुचल देता है, पैर रख देता है किसके ऊपर, बटर के ऊपर. बटर के ऊपर पैर रख देता है. आई डिडंट से एनीथिंग. उसने कुछ भी नहीं कहा. बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल. लेकिन वो टेबल के ऊपर बैठ जाता है. कौन, यहाँ पर जेरोम आराम से बैठा है क्योंकि जेरोम ने अपनी जो पैकिंग थी क्लोथ की वो कर ली. अब जो टर्न थी वो किसकी थी, हैरिस और जॉर्ज की थी. एंड वॉच्ड देम. उनको देखता रहता भी क्या कर रहे हैं. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. अब ये चीजें उसको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी कि वो कैसे कितना लॉस करेंगे पैकिंग में. आई फेल्ट दैट. और उसको महसूस भी हो रहा था भी कितना पैकिंग के अंदर वो लॉस कर रहे हैं. इट मेड देम नर्वस. ये चीजें उनको नर्वस भी बना रही थी. एंड एक्साइटेड, वो एक्साइटेड भी थे पैकिंग करने के लिए. एंड दे स्टैब्ड ऑन थिंग्स. और अब उन्होंने चीजों के ऊपर पैर रखना शुरू कर दिया. मतलब चीजों के ऊपर वो ऐसे पैर रख रहे थे, कभी किसी चीज के ऊपर पैर रखते, कभी किसी चीज के ऊपर. मीन्स उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मैश क्रिएट कर दिया था. पुट थिंग्स बिहाइंड देम. चीजों को कभी अपने पीछे रख रहे, कभी आगे रख रहे थे. एंड देन कुडंट टू फाइंड देम. और फिर उनको वो मिल भी नहीं रही थी. मीन्स चीजें उठाते अपने पीछे रख लेते, अब बैक साइड में रखते तो वो भूल जाते कि उन्होंने पीछे रख रखी है. कभी उसके ऊपर बैठ जाते, कभी उसके ऊपर पैर रख देते. व्हेन दे वांटेड देम. जब वो उनको जरूरत पड़ती कि नहीं इस चीज को पैक करना है तो उनको मिलती ही नहीं थी. एंड दे पैक्ड द पाइस एट द बॉटम. जो मतलब गलने सड़ने वाली चीजें थी वो नीचे, टूटने वाली चीजें उन्होंने नीचे पैक कर दी. और जो हैवी थिंग्स उनको ऊपर पैक कर दिया. एंड पुट द हैवी थिंग्स ऑन द टॉप. मीन्स कहने का जो लाइट वेट थिंग्स होते हैं वो हमेशा ऊपर पैक करते हैं. लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो लाइट वेट थिंग्स थी वो नीचे पैक कर दी और जो हैवी थिंग्स थी वो उनको टॉप में सबसे ऊपर उनको पैक कर दी. सो दिस इज द वर्स्ट पैकिंग in the world. So they upset salt over everything. सारी चीजों पे उन्होंने पानी फेर दिया यहाँ पर. एंड एज फॉर द बटर. अब यहाँ पर बटर की बारी आती है जो कि सॉल्ट बटर होता है. यहाँ पर जो सॉल्ट बटर है यहाँ पर क्या था, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 or 2 pans वर्थ ऑफ बटर. मीन्स उनको नहीं लगता था कि मैं इतना ज्यादा वो मैच क्रिएट कर देंगे बटर को लेके इन द होल लाइफ. देन दे डिड. मतलब पूरी लाइफ में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जो अब ये होने वाला था. आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट. जॉर्ज को ये मिल तो गया ऑफ हिज स्लीपर. अपने स्लीपर पे उसको मतलब जो बटर होता है उसके स्लीपर पे गिर जाता है तो उसको बटर तो मिल गया उसके स्लीपर पे क्योंकि उसने स्लीपर उसके ऊपर रख दिया था तो स्लीपर के ऊपर बटर आ जाता है. दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल. अब ये जो बटर है वो उसको केटल में डालने की कोशिश करते हैं. इट वुडंट गो इन. अभी उसके अंदर ही नहीं जा रहा था. क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि केटल के अंदर ऑलरेडी कोई चीज भरी हुई थी. व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट. और जो कि उस केटल में से बाहर नहीं आ रही थी. दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट. लास्ट में वो चीज केटल से बाहर तो निकल गई. एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर. उन्होंने उसको चेयर के ऊपर रख दिया. चेयर के ऊपर उसको रख दिया. एंड हैरिस सेट ऑन इट. और क्या करता है, हैरिस जाकर के उस चेयर के ऊपर बैठ जाता है. एंड इट स्टक टू हिम. और ये उसके पीछे चिपक जाता है. अगर आप जैसे मान लो कोई चेयर है, करते ना मजाक करते, जैसे चेयर है, चेयर के ऊपर कोई भी एग्स रख देते हैं या कोई बटर रख दिया तो क्या है कि पीछे जो बंदा बैठता है उसके पीछे चिपक जाता है. तो ऐसे यहाँ पर इसके साथ हुआ कि जो हैरिस है, जॉर्ज ने उसको क्या किया, वहां पे उसको चेयर के ऊपर रख दिया. अब हैरिस उसके ऊपर जाके बैठ गया. उसको याद नहीं रहा कि वो कहाँ पे बैठ गया. अब जो बटर था उसके पीछे पेस्ट हो गया. ओके, तो दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. अब वो उस बटर को, सॉल्ट बटर को इधर उधर सारी जगह ढूंढते रहे. कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, अभी तो हमारे सामने था, कहाँ रख दिया. आई विल टेक ऑथ. कहता कि मैं श्योर हूँ. आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर. कि मैंने तो उसको चेयर पे रखा था. अब वो तो श्योर है. कौन श्योर है, जॉर्ज. जॉर्ज कहता कि मैं श्योर हूँ, मैंने यहीं पे रखा था. स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट. अब
कहता कि शीट पे तो कुछ भी नहीं रखा, लेकिन मैंने तो शीट पे रखा था। अब शीट पे तो था, लेकिन वो तो हैरिस उसके ऊपर बैठ गया, तो हैरिस के पीछे चिपक गया वो। अब जॉर्ज भी सही कह रहा है कि उसने रखा तो चेयर के ऊपर ही था, अब कहाँ गायब हो गया? आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरी। हैरी कहता है कि आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, कहते कि चलो मैं अपने आप ही कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी देर का ही काम होगा। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम, फिर वो सारे रूम में इधर उधर घूमते रहते कि देखते कहाँ है कहाँ है। उनको बटर नहीं मिल पा रहा था, मीन्स यहाँ पर वो किस चीज को ढूंढ रहे, सॉल्ट बटर को यहाँ पे ढूंढ रहे। एंड देन दे मैट अगेन इन द सेंटर, फिर दोबारा से वो सारे रूम में ढूंढ के दोबारा से फिर वो सेंटर में, रूम के सेंटर में फिर से फिर आ जाते हैं कि उनको तो कहीं भी नहीं मिला। ओके, स्टेयर्ड एट ईच अदर वन अनदर, एक दूसरे की तरफ फिर से देखने लगते, मीन्स रूम में हर जगह ढूंढ ढूंढ के फिर से वो रूम के सेंटर में आ जाते हैं और वो देखते भी नहीं, हमें तो नहीं मिला। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग होगी भी। क्या चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यहाँ पे? सॉल्ट बटर। जो सॉल्ट बटर है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है। ये किसने कहा? जॉर्ज ने कहा कि इतनी क्या प्रीशियस चीज होगी कि मैंने अभी तो चेयर पे रखा और मुझे ये मिल भी नहीं और कैसे गायब होगी। हैरिस कहता है कि बहुत ज्यादा मतलब मिस्ट्री बन के रहेगी हमारे लिए। देन जॉर्ज गोट राउंड एट बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, तभी जॉर्ज एकदम से हैरिस के पीछे चला जाता है और पीछे जाते उसकी नजर कहाँ पे जाती है? हैरिस की बैक साइड पे, जहां पर की बटर पेस्ट होता है, पे उसको स्टक हो जाता है, चिपक जाता है। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, अभी इसके पीछे क्या कर रहा है? ही एक्सक्लेम्ड, वो यहाँ पर जो वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे पीछे क्या कर रहा है, ठीक है। वेयर, कहाँ पे है? हैरिस ने कहा कहाँ मिल गया बटर तुम्हें? स्पिनिंग राउंड, वो फिर से मतलब स्पिनिंग मतलब बिल्कुल राउंड राउंड घूमते हुए वो पूछता है कि कहाँ कहाँ मिल गया बटर, यहाँ पे मुझे तो नहीं दिखा। स्टैंड स्टिल कांट यू, कहता कि बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, क्या तुम नहीं खड़े हो सकते? रोड जॉर्ज, जॉर्ज उसके ऊपर चिल्लाता है, फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते? अब वो सीधा खड़ा होगा तभी तो उसके पीछे से उसको हटाएगा। एंड दे गोट इट ऑफ, उन्होंने उसको उतार लिया। एंड पैक्ड इट इन द टी पोट, और उसको फिर से उतार करके उसको कहाँ पे पैक कर दिया? टी पोट के अंदर उसको पैक कर दिया। मीन्स कितनी वर्स्ट पैकिंग है कि इधर उधर पैरों के नीचे कोई चीज आ रही है उसको भी उठा के वो फिर से पैक कर रहे हैं वहां पे खाने के लिए। जो यहाँ पर मॉट मर्सी यहाँ पर है, ये डॉग का नेम है। वॉज इन इट ऑल, वो यहाँ पर था। ऑफ कोर्स, ये जो डॉग है उसकी एम्बिशन क्या थी लाइफ में? गेट इन द वे एंड बी स्कॉल्डेड, मीन्स वो जैसे होता नहीं, डॉग्स की हमेशा, डॉग की क्या हैबिट होती है, जो पैट डॉग्स होते हैं उनकी हैबिट होती है कि वो चीजों को मतलब इधर उधर करते रहते हैं, ठीक है, और वो प्लेफुल वे में लेते हैं, सारी चीजों को निकालते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और चाहे उनको कोई डांटता भी उनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता। तो सेम यहाँ पर जो मॉन्ट मर्सी डॉग है वो यहाँ पर करता है। इफ ही कैन scream in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad, मतलब यहाँ पर जो डॉग है वो भी लोगों को पागल बनाता रहता है जैसे कि पैट एनिमल्स करते हैं। एंड हैव थिंग्स थ्रोन, और चीजों को नीचे फेंकता है, एट हिज हेड, भी उसके सर के ऊपर से। एंड देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, फिर उसको लगता है कि भी चलो उसका डे जो वेस्ट नहीं हुआ। और यहाँ पर जो डॉग है वो ऐसे ही हैबिट रखते हैं, जो पैट डॉग्स होते हैं वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour in his highest aim and object, मिस जो डॉग्स है उनका हाईएस्ट एम, हाईएस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मतलब लोगों को परेशान करके खुश होना। मिस वो जैसे कोई भी चीज होती है तो उन चीजों को क्या करते हैं, उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये हर एक पैट की हैबिट होती है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन द थिंग्स, अब यहाँ पर जो कौन आता है यहाँ पे जो डॉग आता है, डॉग जो आता है वो क्या करता है, डॉग यहाँ पर आते ही क्या करने लग जाता है, उन चीजों के ऊपर बैठना शुरू कर देता है। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, और मतलब वो करना शुरू करता है जो वो करना चाहता है। दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वाज हिज कोल्ड डैम नोज दैट दे वांटेड, मिस जो चीजें हैरिस और जॉर्ज को नहीं मिल पा रही थी वहां पर वो स्मेल लेकर के उन चीजों को फटाफट से पहुंच जाता था। कौन? डॉग। एंड ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, अब यहाँ पर जो डॉग होता है वो अपनी लेग्स को जैम जैम के अंदर भी डाल देता है। एंड प्लेड विद द टी स्पून के साथ वो खेलने लग जाता है। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर, और वो ऐसा दिखाता है कि जैसे जो लेमन्स होते हैं वो लेमन जैसे रेड हो यहाँ पे, मिस वो लेमन्स के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे कि वो रेड्स के साथ खेल
खेलते हैं, ठीक है। एंड गोट इनटू द हैम्पर, और फिर से वो फूड के जो हैम्पर होते हैं, फूड की जो बास्केट होती है उसकी तरफ जाता है। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और 3 को मार देता। 3 को मारने का मतलब यहाँ पर जो 3 लेमन्स होते हैं उनको वो ऐसे खेल रहा था जैसे उसने 3 रेड्स को मार दिया हो। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस कहता है कि मैंने उसको एनकरेज किया। आई डिडंट एनकरेज हिम, कहते हैं कि मैंने उसको कभी भी एनकरेज नहीं किया। आई अ डॉग लाइक हैड लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, कहते हैं कि इस तरह के जो पेट डॉग्स होते हैं उनको किसी की एनकरेजमेंट, किसी की प्रेज की जरूरत नहीं होती। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सीन, ये जो है वो हर डॉग में, जो हर पेट डॉग होता है उसमें अल्टीमेटली ये हैबिट होती है कि वो क्या करते हैं, थिंग्स के साथ प्ले करते हैं। दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, मीन्स ये तो उनके अंदर बर्थ से ये हैबिट होती है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, अब फाइनली जो ईटेबल थिंग्स होती हैं जॉर्ज और हैरी मिलकर उनकी पैकिंग कर देते हैं। क्लोथ की पैकिंग कौन करते हैं, जेरोम करता है जो नरेटर है, ओके। और वो भी 3 थिंग्स को भूलने के बाद, और यहाँ पर जो पैकिंग है ये डन हो जाती है 12:50 पे, शाम के टाइम पे। एंड हैरीज सैट ऑन द बिग हैम्पर, अब जो हैरीज है वो बड़े वाले हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है। एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कहता है कि हाँ भाई अब देखो पैकिंग हो गई है और मुझे लगता है कि कुछ भी टूटा फूटा इसके अंदर नहीं मिलेगा। अब कितनी फनी थिंग है यहाँ पर, हैरिस और जॉर्ज दोनों ने चीजों को ऐसे पैक किया था कि सबसे पहले तो चीजें पहले ही तोड़ फोड़ दी थी। पहले ही सारी चीजें मतलब मैश क्रिएट करके, गंदगी फैला करके, अच्छी बुरी चीजें उन्होंने पैक कर दी, और उसके बाद जो हैवी थिंग्स की उन्होंने ऊपर पैक कर दिया, लाइट वेट थिंग्स को नीचे पैक कर दिया, जिसकी वजह से जो नीचे वाली चीजें थी वो आराम से टूट जाती, और होने भी यही था। मतलब यहाँ पर क्या होता कि वो चीजें टूट जाती, और लेकिन यहाँ पर जो हैरिजो क्या कहता है कि मुझे होप है कि कोई भी चीज यहाँ पर टूटी हुई नहीं मिलेगी, बट ऐसा हो सकता था, ओब्वियसली सारी चीजें यहाँ पर टूट जानी थी जैसे उन्होंने पैकिंग की थी। जॉर्ज सैड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, कहते जॉर्ज कहते कि अगर कोई चीज टूटेगी तो टूट ही जाएगी। एंड दिस थॉट सेम्ड टू कंफर्टिंग, और इस चीज को सोच करके वो कंफर्ट फील कर रहा था कि भाई देखो कोई चीज टूटी तो टूटनी है तो टूटेगी, वैसे हमने पैकिंग बड़ी अच्छी कर दी है, कोई भी चीज यहाँ पर टूटने वाली नहीं है। ही ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा, ही वॉज रेडी फॉर बेड, भाई अब मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ। वी वर ऑल रेडी, हम सबके सब रेडी थे अब सोने के लिए। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस, हैरी भी उनके साथ ही सो रहा था दैट नाइट। एंड वी वेंट अपस्टेयर, तो सारे के सारे यहाँ पर सोने के लिए चले जाते। जेरोम के, जेरोम इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट हाउ द फ्रेंड्स वर दे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या है, यहाँ पर 3 फ्रेंड्स है, जेरोम, हैरिस और जॉर्ज। जेरोम यहाँ पर अपनी जो पैकिंग की स्किल है वो यहाँ पर शो ऑफ करना चाहता है कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ, लेकिन वो सुपरवाइज करना चाहता है कि भी जेरोम की जो जॉर्ज और हैरी वो पैकिंग करे, लेकिन जो जेरोम है वो क्या चाहता था यहाँ पर सुपरविजन करना। लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों ये स्मार्ट होते बहुत ज्यादा, तो हैरीज और जो जॉर्ज होते हैं वो बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, और यहाँ पर क्लोथ की सारी पैकिंग जो वो कौन करता है, जेरोम जो नरेटर वो करता है। अब जब पैकिंग कर लेता तो सबसे पहले वो बूट डालना भूल जाता है, तो उसको हैरीज याद दिलाता है। फिर उसको अपने आप से याद आता है टूथब्रश डालना। उसके बाद फिर जॉर्ज उसको रिमाइंड करवाता है कि क्या उसने सोप को रख लिया या नहीं रखा, तो उसके पैकिंग सोप को डालने के बाद फिर से पैकिंग वो कर लेता है। उसके बाद जैसे वो पैकिंग करता है, अब कहते हैं कि चलो भाई जो ईटेबल थिंग्स है उनकी पैकिंग हम दोनों कर लें, क्योंकि हमें पैकिंग बहुत अच्छे से करनी आती है। तो हैरिस और जॉर्ज यहाँ पर ईटेबल थिंग्स की पैकिंग करते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मैश यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। ओके, एंड लास्ट में फाइनली जो चीजें हैं वो हैवी थिंग्स को ऊपर रखते हैं और लाइट वेट थिंग्स को नीचे रखते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, टूट सकती हैं और टूटेंगी भी यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ मार्वेलस डे एवरीबॉडी।